आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਵੰਡ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, इंडियन ऑयल के रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखने का मौका मिला। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य में हमें पेट्रोलियम की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग प्रकार का जो रिसर्च हुआ है वो भविष्य में बहुत उपयोगी है। विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में जो काम हुआ है उससे निश्चित रूप में देश को पोल्यूशन से राहत मिल सकती है। उसके अलावा जो पेट्रोलियम के अनेक प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर भी जो काम हुआ है और लगातार रिसर्च हो रहा है और आगे इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये देश के भविष्य में बहुत उपयोगी होगा। मैं यहाँ के काफी रिसर्च से प्रभावित हुआ हूँ और राम कुमार जी जो यहाँ के डायरेक्टर है उनको ये अच्छे कार्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿੜ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ शुरुआत की थी। गांव वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस प्रकार से पुराने तालाब हर गांव में, खेत में, शहर में थे, अब धीरे धीरे वो लगभग या तो कब्जा शुरू हो चुका है या वो इतने खराब हो चुके हैं कि उसमें केवल गंदा पानी, उनका पुनरुद्धार कैसे हो। और प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि 75 हर जिले में एक एमपी की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें। और प्रदेश की सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है। अलग से पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है जिसके माध्यम से ये पैसा मिलेगा। इसके अलावा भी हम डिपार्टमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट है वो साथ जोड़ेंगे, मनरेगा साथ जुड़ेगा या और स्कीम से भी पैसा जोड़ के कनेक्टिविटी बढ़िया कैसे हो, पानी वहाँ पर कैसे आ सकता है, पेड़ पौधे लगाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर का साथ लेंगे और फिर सबका साथ सबके सहयोग से ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जैसे हजारों साल से हमारे गाँव में होते थे, वरना तो नीचे का पानी खत्म हो चुका है। 1.25 करोड़ की लागत है अभी तक, लेकिन हम मनरेगा से जोड़ के अगर और भी लागत बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਮੰਗ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਢਿੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਢਿੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जो होगा उसको कहते हैं कि काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है। तो एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। जिस समय पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी, आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी टेबलेट में आ जाएगी। तो युग का परिवर्तन कितनी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का युग का परिवर्तन होगा। पंचकूला विखे जिला पद्धरी प्रोग्राम च विधान सभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता टैबलेट वंड समागम नाल जुड़े। शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन, एक रेवोल्यूशनरी डे यू कैन से, कि शिक्षा का मॉड्यूल ही पूरा चेंज हो जाएगा। शिक्षा जो किसी समय था कि गुरुकुल के अंदर शिक्षा मिलती, वहाँ जाकर के अपने गुरु से शिक्षा लेते, उसके बाद ये पाठशाला हुई और टेस्ट शुरू हुए, हमारे बोर्ड बने, जहाँ बोर्ड के अंदर एग्जाम लिया। और अब जो ई लर्निंग से, ये कोविड काल की उपज में कहूँगा कि कोविड के अंदर जब बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बंद थे, तो उस समय ई लर्निंग आजाद हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसका फायदा आज हमारे बच्चों को जब शुरू हो गया, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इतनी बड़ी एक सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है, इसका फायदा हमें कुछ साल के बाद देखने को मिलेगा। जितने बड़े बड़े कंपटीशंस ऑनलाइन होते हैं, उन सभी कंपटीशंस के अंदर हमारे बच्चे भी compete कर सकेंगे। और बच्चों को वो जो बस्ते का बोझ जो था पीठ के ऊपर लाद के जाते थे, आज वो सारा बस्ता इस टैबलेट के अंदर आ गया है। हर तरह की एजुकेशन इसके अंदर आ गई है। इसके अंदर टीचर भी आ गए हैं, इसके अंदर स्टूडेंट भी आ गए हैं। कोई डाउट क्लियर करना है किसी अपने टीचर से, वो घर बैठे बैठे आप टैबलेट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। पिछले 2 साल के अंदर हमारे स्कूलों के अंदर जो एडमिशन हैं, वो 3 लाख 4 लाख से ज्यादा बच्चे और एडमिट हुए। लेकिन अब ये ई टैबलेट्स आने से एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, और जब एजुकेशन का स्तर सरकारी स्कूलों के अंदर बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर वो पेरेंट्स जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से दुखी हैं या उनकी फीस देने में असमर्थ हैं, वो पेरेंट्स सरकारी स्कूलों के अंदर भेजेंगे। और आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से पीछे नहीं। ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸਿਰਸਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मैं सान्या राणा 12वीं की छात्रा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 पंचकुला में पढ़ती हूँ। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें उनके द्वारा टैबलेट दिए जा रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रदेश में सबसे पहले टैबलेट दिए जा रहे हैं। हमारे ये टैबलेट हमें नए पंखों के रूप में दिए जा रहे हैं, जिनसे हम नई उड़ान भर सकेंगे। और इन टैबलेट की सहायता से हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया था, आज वो भी साकार होने जा रहा है। ये टैब से हम विश्व स्तरीय अध्यापकों से भी पढ़ाई कर सकेंगे। हिमांशी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें इतने अच्छे टैब दिए हैं, हमारी और भी ज्यादा स्किल्स बढ़ेंगी। अब ऑनलाइन क्लासेस में भी उतना ही बेनिफिट होगा जितना ऑफलाइन क्लासेस में होता था। और बहुत नई टेक्निक्स भी हैं, बहुत नए ऐप्स भी आए हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस में भी उतना ही इंटरेस्ट होने वाला है जितना ऑफलाइन में होता था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब हमारा मुकाबला भी बराबरी का होगा। डिजिटल डिवाइड की अब ये जो खाई थी वो भर चुकी है। हिमांशी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें इतने अच्छे टैब दिए हैं, हमारी और भी ज्यादा स्किल्स बढ़ेंगी। अब ऑनलाइन क्लासेस में भी उतना ही बेनिफिट होगा जितना ऑफलाइन क्लासेस में होता था। और बहुत नई टेक्निक्स भी हैं, बहुत नए ऐप्स भी आए हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस में भी उतना ही इंटरेस्ट होने वाला है जितना ऑफलाइन में होता था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब हमारा मुकाबला भी बराबरी का होगा। डिजिटल डिवाइड की अब ये जो खाई थी वो भर चुकी है। मेरा नाम सृष्टि है, मैं 10th की
छात्राओं। कोरोना काल में हम ऑनलाइन क्लास लगी थी तो उनमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो अब जब टैब आ गए हैं तो उसमें पढ़ने के लिए बहुत सुविधाएं हो गई हैं और स्कूल में जैसे ऑफलाइन पढ़ेंगे तो घर में अब ऑनलाइन भी कर पाएंगे। मेरा नाम तान्या है, मैं +2 कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमें टैबलेट मिले हैं, हम इससे अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।